बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने जो हमारी डिस्कशन थी स्ट्रेसेस की वो हमने की थी, और उसमें पर्टिकुलरली जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन थी 3 डायमेंशन को वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज उसी की कंटिन्यूशन में इंशाल्लाह वी वुड बी डूइंग दी स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लेन स्ट्रेस, because in the last lecture we were doing the stress transformation in 3-dimensional domain, and in today's lecture inshallah we'll be doing the stress transformation in plane stress domain, and then we will be moving towards the that Mohr circle, and then definitely we'll be jumping into the soil mechanics domain, because you people might have been thinking that there's no soil mechanics so far. The reason behind this is that because the concepts that are being utilized in the understanding of this application of Mohr circle into the domain of the soil mechanics, we need to understand, we need to know all the knowledge of the mechanics of solid that would be used in the soil mechanics. So that is the connection that we need to have some sort of bridge in between, so that it would be easier for you to understand all those things, right? So that's why we are spending a little bit time on revision sort of thing. You can see, you can call it to be a revision, or you can call it to be even if you don't have studied those concepts yet, so it's sort of new knowledge for you, and that particular new knowledge would be helpful for you in the understanding of the stresses in soil mechanics as well. So the transformation of plane stress. So as discussed so far, the state of the stress at a point is represented by the stresses that act on mutually perpendicular faces, because up till now you have seen that we have been drawing a plane. Normally we draw it a scale sort of thing, and on the two faces of this plane we were showing the stresses. On the vertical face, if you call it to be a horizontal face, on the horizontal face, and then on the vertical face, on both the faces we were showing these stresses, right? So that's what we are saying right here as well. The stress at a point is represented. Let me take the laser. Represented by the stresses that act on the mutually perpendicular faces, because those two faces were the mutually perpendicular faces of a volume element enclosing that point. Now, do remember that this particular point that we are mentioning, the point is the point within the soil, right? So initially we started our discussion with the point in the beam, with the point in the shaft, with the point in any structural element. But right now, as we are trying to move our discussion towards the soil mechanics, what we are saying is that this particular point is within the soil mass, because we are trying to explore the stresses in the soil. Okay. So that particular volume element is enclosing the point in a soil mass, you can say. Because the stress at a point depends on the inclination of the plane. Because we have studied, हमने बार-बार इस चीज़ को repeat किया कि जो stress at a point है, वो depend करता है उसकी inclination पे of the plane, कि किस inclination पे पर हम चल करके काम कर रहे हैं. If we are considering the vertical plane, the stresses would be different. If we are considering the inclined plane, the stresses would be different. So that depends on the inclination of the plane on which they act. The stresses on the faces of the element vary as the orientation of the element change. जैसे जैसे orientation of the element change होगी, stresses की वो जो normal और change stress की distribution है वो change होने शुरू हो जाती है. The mathematical relationship that describe this variation are called the transformation equation of the stress. जो mathematical इसकी वो होगी चीज, वो फिर क्या कहलाएगी, इसकी transformation equation कहलाएगी. So in this lecture, in this part, we derive the transformation equation for plane stress and then use them to find the maximum and minimum stresses at a point. And with the help of this transformation equation, we will see कि हम किस तरीके से maximum और minimum stress distribution को find out कर सकते हैं. So transformation equation को अब हम understanding of the transformation equation in plane stress, अगर आप देख रहे हैं कि तमाम diagram जो आपको नजर आ रही है, we are showing them on a plane, we are not showing them कि 3 dimension के अंदर उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. So figure A shows the state of a plane. This is the figure A. Figure A, this particular figure shows the state of plane stress at a point. This particular figure is showing a state, plane stress का एक state आपको दिखा रहा है, where the reference plane faces of the element are perpendicular to the x-axis. जो उसके ये face है, ये x-axis के perpendicular, और उसका ये face है, this is perpendicular to the y-axis.
ठीक है। सो दिस फिगर बी, दिस पर्टिकुलर फिगर है, ये जो फिगर बी है, दिस रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस एट द सेम पॉइंट। हम पहले भी बार बार समझा चुके हैं कि ये सेम पॉइंट के ऊपर है, बट नाउ द फेसेस ऑफ द एलिमेंट आर परपेंडिकुलर टू द एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस। अब ये जो फेसेस हैं वो परपेंडिकुलर हो गए एक्स डैश एक्सिस के और वाई डैश एक्सिस की, वेयर द ओरिएंटेशन ऑफ द टू सेट ऑफ एक्सिस डिफर बाय द एंगल थीटा। अब ये जो, अगर आप ये वाला एक्स देख लें तो ये एक्स वो एक्स था जो कि हमने इस पर्टिकुलर फिगर में दिखाया था, जहां नॉर्मल गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी, और ये जो एक्स डैश है ये फिर इसकी ओरिएंटेशन हो गई, इसको हमने एक सर्टेन डिग्री पर घुमा दिया है और उस घुमाने पर उसके स्ट्रेसेस देख रहे हैं। अब ये x और x डैश एक्सिस के दरमियान जो ये एंगल है, दिस एंगल इज नाउ वी आर कॉलिंग इट टू बी थीटा। जो ओरिएंटेशन इसकी हुई है इसकी वो थीटा डिग्री हो गई है। नोट दैट द पॉजिटिव थीटा इज मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जैसा कि यहाँ ये घुमाया गया, अगर आप ये देख रहे हैं, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस वुड बी मेजर्ड इन द पॉजिटिव होगा, from the x axis to the x dash axis। तो x axis से x dash axis पर अगर इसकी जो ओरिएंटेशन है, ये जो इसको घुमाना है, ये घुमाना अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, then we are considering it to be a positive angle, positive theta। We also use the equality of the shear stresses। ये मैंने पहले भी आपको जो फिजिकल क्लास हुई थी उसके अंदर बड़ी डिटेल में आपको बता दिया था कि इक्वलिटी ऑफ द क्रॉस शेयर होती है, जो शेयर स्ट्रेसेस हैं ये इक्वल होते हैं ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। तो टा बाय एक्स जो है वो टा एक्स वाई की इक्वल होगा, एंड टा एक्स डैश वाई डैश वो भी इक्वल टू टा वाई डैश एक्स डैश इन दी जो लेबलिंग हमने फिगर में की, तो ये इक्वलेंट होते हैं। तो द स्ट्रेसेस, the stress state in figure A and B are said to be equivalent, ठीक है, because they represent the same state of the, ये फिगर A थी और ये फिगर B थी। तो स्ट्रेस स्टेट जो है फिगर इन B ये जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं कि जो दोनों की समेशन होगी वो बराबर हो जाती है, ठीक है। रेफर टू डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हमने डिफरेंट ले लिए हैं, एक में एक्स वाई है, दूसरे में एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि x प्लस वाई और x डैश प्लस वाई डैश जो सम होगा वो इक्वल होता है, जिस पर हमने स्टेटमेंट लगाई थी कि वो इनवेरिएंट होती है समेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। सो लेट अस नाउ कट द एलिमेंट इन फिगर A। ये जो फिगर की एलिमेंट था, ठीक है, इसको हमने कट किया इनटू टू पार्ट्स अलोंग द प्लेन AA एंड आइसोलेट द लेफ्ट पोर्शन। और इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, बिकॉज़ दिस पोर्शन इज नाउ द लेफ्ट पोर्शन, और इस पोर्शन को हमने आइसोलेट करके अलग कर दिया है, एंड द आइसोलेटेड पोर्शन जो कि हमने कट पोर्शन में इसको आइसोलेट किया था, दैट पोर्शन इज बीइंग शोन हियर। वो फिर पोर्शन आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। और इस पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं जैसे सिग्मा एक्स है, ईटा एक्स वाई है, इस स्ट्रेसेस को हमने फिर जाकर के ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारे टारगेट अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस, द नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज द शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन। The inclined plane AA coincides with the x dash face of the element in figure B। वो जो हमने लास्ट स्लाइड में फिगर B दिखाई थी, जो इसका x dash फेस था, इसके साथ ही इंक्लाइन कर रहा है। ये जो इसको घुमाया गया था थीटा डिग्री के ऊपर, वो ये आपको नजर आ रहा होगा कि क्या किस तरीके से हमने इसको घुमाया था। So that the stresses acting on the plane are sigma x dash and ta x dash y dash। इसके ऊपर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि सिग्मा x dash है, एंड देन जो ये शेयरिंग स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, दी शेयरिंग स्ट्रेसेस आर ta x dash y dash, राइट। तो अभी मेरे हाल में ये जो कि क्या हो रहा है, प्लेन स्ट्रेस क्या है, हम इसको कैसे घुमा रहे हैं, ये जो बार बार घुमाने की चीज थी, अब पिक्टोरियल फॉर्म में एटलीस्ट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्ट फिनोमेना हो रहा है। और ये फिनोमेना हम विद इन द सॉइल मास क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्लेन ऑन व्हिच द शेयरिंग स्ट्रेसेस इज मैक्सिमम, और ऑन प्लेन ऑन व्हिच द चांसेस ऑफ फेल्योर विद इन द सॉइल मास इज हाई। हमने ऐसे प्लेन्स को जाके ढूंढना है, क्योंकि वो प्लेन फिर हमें सॉइल में पेन देने वाले हैं, बिकॉज एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर वी माइट बी रेस्टिंग आवर सॉइल ऑन दैट। एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर आपके पास स्लोप स्टेबिलिटी मैटर कर सकती है। एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर आपके पास जो हमारे पास, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ढेर सारे जियोटेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि हमें इससे हमें फेस करने पड़ सकते हैं इफ अ सॉइल मास फेल्स, ठीक है। सो वी कैन नाउ अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू द वेज शेप। ये जो हमने कट किया हुआ था, ट्रायंगल शेप में किया था, उसको हम वेज शेप कह रहे हैं। इसके ऊपर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे एंड डिराइव सिग्मा x डैश एंड टा x डैश y डैश इन टर्म्स ऑफ थीटा
and the stress is acting on the XY phases. अब जो नॉन गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी उसकी मदद से हमने सिग्मा x डैश मालूम करेंगे और टा x डैश y डैश मालूम करेंगे इन टर्म ऑफ थीटा। तो ये वो कट शेप था जो कि हमने वहां से काटा था और यहाँ ला करके हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं वो ये लग रहे हैं, सिग्मा x लग रहा है और यहाँ शेयरिंग लग रहा है, टा xy लग रहा है, normal stress sigma y ta xy, and we are trying to find out these two stresses, the normal stresses on this particular phase x dash phase as well as the shearing stresses on this x dash phase. So our ultimate aim in today's part, in this particular part of the lecture, is that we are trying to find out the normal and the shearing stresses on this particular plane. With किससे हम find out करेंगे? With the help of the given state of the stress, and the given state of the stress is sigma x, sigma y and ta xy. These three stresses are given, and with the help of these three given stresses, we are trying to find out the sigma x dash and ta x dash y dash. So let dA be the area of the inclined phase. What we are saying is that this particular inclined phase, the area of this inclined phase is dA. ठीक है, यहाँ ये बात आपके ध्यान में रहे कि because we are not considering, we are considering this to be a line element. लेकिन definitely अगर किसी भी चीज को वॉल्यूम एलिमेंट को आप कट करते हैं तो there would be area, there would be a plane है, अगर प्लेन है तो उसका एरिया होगा। तो उस एरिया, प्लेन के एरिया को हम यहाँ कह रहे हैं कि इंक्लाइंड फेस है वो DA है, ठीक है। और अगर ये DA है तो फिर इसका ये जो प्रोजेक्शन होगी वो DA sin थीटा होगी। जैसे आप जानते हैं रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट आप देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी DA sin थीटा एंड दिस वुड बी DA cos थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को जाएंगे तो ये काफी बेसिक कांसेप्ट है, इसको मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं। आई होप कि ये मैंने वैसे भी कई दफा क्लास में समझा दिया था और आप माशाल्लाह लेवल के पढ़े हुए हैं। आफ्टर ऑल यू पीपल आर स्ट्रेट, यू नो व्हाट आर द बेसिक्स। So by multiplying the stresses by the areas on which they act, we obtain the forces shown on the free body diagram. तो आप जानते हैं कि अगर हम स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्सेस मिल जाती हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। हम यहाँ ये करेंगे इस स्ट्रेस को और शेयरिंग स्ट्रेस को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नॉर्मल स्ट्रेस को इस शेयरिंग स्ट्रेस को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट द फोर्सेस। एंड सिमिलरली जो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस इस एक्स डैश बेस पर हो रहे हैं इसको हम भी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग द फोर्सेस। बिकॉज हमने जो ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, दैट इन्वॉल्व्स समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ मोमेंट है हमारे पास, हम वेरी वेल नॉन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये तमाम जो हमने अभी तक डिस्कशन की थी, इस डिस्कशन का निचोड़ मैंने इस फिगर के अंदर डाल दिया है। वो सारे सारा आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि हमने इसको फोर्सेस भी बना लिए हैं, हमने इसके एंगल भी दिखा दिए। The only thing right now we have to do is we have to take the summation of the forces, and that's what we will be doing in the next slide. The equilibrium equation, the first equilibrium equation is in summation of the forces in the x direction is 0, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो I've reproduced that particular figure in the last slide from last slide to this particular slide as well. So what we are trying to do here is that this particular force sigma x dash dA cos theta, this is the resolution of this particular force in this direction, ठीक है। तो ये अगर आप कहते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेन ले लेते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये फोर्स आएगी ये वाली, इस फोर्स को हम कह रहे हैं ये सिग्मा x dash dA cos of theta. So this is the first force in the x direction. Now this is the second force in the x direction, ठीक है। And this one, ये जो है ये वाली, this is the third force, and as well as we will have a component of this particular force as well that would be acting in the negative x direction, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये पहली आपने फोर्स ली है ये वाली is this thing sigma x dash dA cos theta minus ta xy dash, इसका जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, साइन के साथ होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा because I am assuming that you people already know this. So this is the second component, and then sigma x dA cos theta is this particular force, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि this is one, so this is one, ये इसकी सेकंड कंपोनेंट हो गया, ये इसका सेकंड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया, okay, and this one would be the fourth force, ये वाली t ta xy dA sin theta, ये ta dxy, और क्योंकि इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव लगाई। तो ये चार फोर्सेस इन द x डायरेक्शन आ गई, राइट। तो मूविंग अहेड
इसी तरीके से समेशन ऑफ द फोर्सेस इन वाई डैश, तो तमाम फोर्सेस जिसके हमने यहाँ लिए हैं इसके फिर वाई कंपोनेंट में होंगे, उसको आपने इस तरीके से वाई कंपोनेंट में ले लिया। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल सिग्मा समेशन एफ आई मैं नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने सिग्मा एफ एक्स को समझ लिया है और उसी के एक्सटेंशन हम यहाँ कर रहे हैं। So solving for the stresses on the inclined plane, we get this thing. So sigma x dash, अगर आप यहाँ से चल के देखेंगे इसमें, यहाँ देखेंगे आपने, तो आपने यहाँ अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, हमने ये वाली चीज को यहाँ से फाइंड करना है। इसके अलावा बाकी सारी चीजों को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हमने यहाँ एक चीज ये फाइंड करनी है और ये दूसरी चीज फाइंड करनी है, वो दूसरी चीज हमने ये वाली फाइंड करनी है। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है, तो हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी, उसको फिर हम आपस में चढ़ानी करेंगे। तो होना करना ये है कि हमने इन दोनों चीजों को इक्वेशन की तरफ रख के बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर इसको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो वो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपको यहाँ ये नजर आ रहा है। जो सिग्मा एक्स डैश जो है वो सिग्मा एक्स कॉस के थीटा, अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीजें है वो अननोन है और जो राइट हैंड साइड पर चीजें हैं दीज आर नॉन टू यू। और विदिन दो ये आपको चीजें नजर आ रही है कॉस के थीटा, साइंस के थीटा एंड देन जो ये नजर आ रही है, इन चीजों को इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप है उसकी मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉलिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली हमने जो दूसरी इक्वेशन जिसको छेड़खानी की, छेड़छाड़ किया, उससे हमने मदद से ये निकाला है कॉलिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर बी। सो राइट नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन ए एंड बी एंड दीस टू इक्वेशन को हम सॉल्वली ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द वाई फेस on the y dash face of the element in figure B can be obtained by replacing theta with theta plus 90। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो इसका y dash फेस है, ये वाला फेस है ना, ये दो फेस थे यहाँ, तो y dash जो फेस आ रहा है, y dash फेस थीटा प्लस 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये जो फेस था ये थीटा ओरिएंटेशन के ऊपर था और ये जो फेस आ रहा है वो ये दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो थीटा प्लस 90 है। ठीक है, तो वो ये बातें कर रहा है। नोटिंग दैट cos थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू cos थीटा, वी गेट दिस थिंग कि जो हमारे पास ये तो आपने जो सिग्मा एक्स डैश टाइप डैश इस फेस के ऊपर निकाले थे ना, अब ये पहले इनिशियली ये आपका एलिमेंट u था, आपने इस एलिमेंट को रोटेट करके u ले आए, u ला के आपने कहा कि भाई दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फेस एंड दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फेस एंड देन व्हाट अबाउट दिस फेस व्हिच वाज परपेंडिकुलर। तो फिर इस फेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगा, सिग्मा वाई डैश। एंड बिकॉज हमने पहले ही बात कर दी कि जो ये शेयरिंग स्ट्रेस है और ये शेयरिंग स्ट्रेस है दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, तो वो जो स्टार एक्स डैश वाई डैश होगा दैट वुड बी इक्वल टू स्टार वाई डैश एक्स डैश। लेकिन सिग्मा एक्स डैश के साथ साथ हमें सिग्मा वाई डैश भी निकालनी है, तो वो ये सिग्मा वाई डैश की हमने कहानी सुनाई है सारी की सारी कि इसके ऊपर ये इसके अंदर जो सारी चीजें हैं ये कॉस के थीटा की जगह पे हम ये रिलेशनशिप हम इस्तेमाल कर लेंगे जिसकी वजह से हमें ये चीज मिल जाएगी। ओके, तो इसको इक्वेशन सी कह रहे हैं। तो अब जो अननोन स्ट्रेसेस थे जो कि हम फाइंड आउट करने जा रहे थे वो हमने तीन इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, इन द फॉर्म इक्वेशन ए, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बी एंड इन द फॉर्म इक्वेशन सी। तो ये ए बी और सी पे जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है ये हमारे अल्टीमेट इस पर्टिकुलर पार्ट का टारगेट है कि हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अल्टीमेटली फिर हम इसको मॉडल सर्कल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी हम करने जाएंगे। सो इक्वेशन ए टू सी आर द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। Another form of these equation is obtained by substituting the trigonometric relationship. इसकी ज़्यादा जो easy to memorize form है वो trigonometric relationship हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे कि cos square theta is equal to this thing, sin square theta is equal to this thing, and then lastly we'll be using this particular trigonometric relationship that sin theta cos theta is equal to half sin 2 theta. So these three trigonometric relationships we will be using in the A, B, C equation in the last slide. Okay. So into equation is which yield more commonly used form of the stress transformation equation this. So equation A would be of this form. तो इसको याद रखना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ज़्यादा आसान है कि सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो बड़ा बगल फॉर्मूला था ये उस टाइप की चीज है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ये इक्वेशन ए थी, इस इक्वेशन में हमने ये cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये डाला, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे ये डाला और sin थीटा cos थीटा की जगह पे ये डाला, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं आप इधर उधर करके तो ये आपके पास ये आ गए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन यू नीड टू मेमोराइज।
ये आपने इतना फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है कि ये आपको याद हो जाती है कि सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 टा एक्स वाई साइन थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन ए का जो रिफाइंड फाइनल वर्जन आया है वो इस दिस थिंग। इसी तरीके से आप इक्वेशन बी के साथ खेलेंगे, दिस वाज इक्वेशन बी दैट वी डेवलप, ठीक है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप डाली है हमने, इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन भी आ गई। सो टा एक्स डैश वाई डैश यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसी तरीके से इक्वेशन सी के साथ आप जब आप खेलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप डालेंगे तो इक्वेशन सी आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। सो अब ये देखिए, अब ये तीनों इक्वेशन को हमने वन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इक्वेशन 1, this is for the sigma of y dash and this is for the x y dash. So this 1, 2, 3 are the now the final version of the transformation, mathematical form of the transformation equation. Okay. So the stress transformation equation, equation A to C are equality equation 1 to 3 show that if the stress state of the stress sigma x, sigma y and ta x y dash at a point is known, we can calculate the stresses that act on any plane passing through the point. तो ये अगर आप इसके राइट हैंड साइड के ऊपर देख लें तो दिस इज द गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, और अगर आपके पास ये गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है तो किसी भी एंगल थीटा की ओरिएंटेशन के ऊपर, नो मैटर वो 0 से 360 डिग्री किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर आप अननोन जो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है जिसको आप सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश कह रहे हैं वो आप मालूम कर सकते हैं। इट फॉलोज दैट इफ द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द स्ट्रेस इन फिगर ए इज नॉन, then the transformation equation enable us to obtain the equivalent state of the stress in figure B। जो इनिशियली आपने देखा था कि वन बात ब्लू मैंने दिखाई थी और जो उसको मार्क मैंने पिक में दिखाया था, तो वो ब्लू वाली अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको नॉन है, विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लू स्टेट ऑफ स्ट्रेस यू कैन फाइंड आउट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द पिक वन जो कि घुमा हुआ था। ठीक है, तो इंस्पेक्शन इक्वेशन 1 एंड 2 रिवील की जो मैंने बात कर रहा था कि ये इक्विवेलेंसी आ जाती है कि सिग्मा एक्स डैश वाई डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इक्वल टू इसके हो जाएगी। जो दो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे नॉर्मल स्ट्रेस की समेशन थी और जो आपने घुमा के किया हुआ था, जो दो प्लेन आए थे ये नॉर्मल थी, और ये जब हमने घुमा के किए थे जो घुमाए वाले पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की समेशन आएगी वो सेम होगी। तो समेशन ऑफ दी जो स्ट्रेसेस है इज इनवेरिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ये कह रहा है। इन अदर वर्ड the sum of the normal stress is an invariant, that is it does not depend on the orientation of the element। जो टोटल नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन रहेगा कि वो सेम रहेगा, वो किसी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन के ऊपर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों जो नॉर्मल स्ट्रेस की समेशन है दैट वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पार्ट 2 को खत्म करके फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मॉस सर्कल के पर हम आ जाएंगे जहाँ हमें आपको लेकर के आना है।